चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज H2M1 वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। स्टार्ट कर दिया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। So we have completed the lower half circle, lower half circle. ठीक है। So in case of lower half circle we have calculated the minimum velocity required to reach the horizontal point है ना, this point कर लिया था ना। if you are having a bob, एक बॉब है आपके पास m मास का, this is L, तो यहाँ पे what should be the minimum speed so that it will reach the highest point। ठीक है। अच्छा, in case of lower half there was no chances of slacking, slack हो ही नहीं सकता because the force of gravity, the component of force of gravity will always try to tighten the string है ना, it will always try to tighten the string so that there is no threat of slacking है ना, no slack possible। तो आप इसको रॉड लेके करो और स्ट्रिंग लेके करो, you will get the same result because rod और string में there is only one difference। in case of rod there will be no slacking, but in case of string there will be slacking। okay, no slack। so यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एटलीस्ट काइनेटिक एनर्जी इतनी दे दो दैट इट शुड रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो वो एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी mgl। तो हम लोगों ने वी नॉट निकाला था, वी नॉट वाज इक्वल्स टू √2gl। कुछ याद आया? ओके। at which point tension will be maximum? lower most point ना, क्यों? T max, because at this point it will be mg downward plus mv नॉट स्क्वायर बाय l। तो कितना हो जाएगा, mg प्लस mv नॉट स्क्वायर बाय l। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. अच्छा, फाइंड द टेंशन एट दिस पॉइंट। दिस इज T1 and this is T। फाइंड T and T1। मुझे बताओ कितना आएगा। what will be T if given that speed, you can take the speed v at this point है ना। बताओ what will be T and T1, सोच के बताओ सही से। so T is equals to 0, T1 is equals to this। क्लियर? नोट कर लो। अब अगला वाला you have to solve। कौन सा वाला? the second one। अच्छा, doesn't matter whether it is a string or rod, दोनों के लिए it will be same। why it's same? it is same because there is no problem of slacking। ठीक है, there is no problem of slacking। in the lower half the gravity will balance the string and it will never slack है ना। ऐसा होता ही नहीं है, कभी आप करके देख लो है ना। when you move the bob in the lower half, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि that string is going to be slack समझते हो ना, it can be loose है ना, लूज हो जाना। तो in lower half there is no possibility of slacking। second वाला you have to find complete circular। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। तो ये आपको बताना है, ऐसे आपको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है। चलो क्या आएगा, दिस इज द बॉब। ठीक है,
you have to take this as at the highest point as, ठीक है. So you need to find V naught कितना होना चाहिए. For now in this case there may be slacking in the upper half. You have to observe it. उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है. सो इसमें आपको पहले खुद निकालना पड़ेगा. फाइंड V naught for string and rod so that it completes the circle. शुरू हो जाओ. चलो, नहीं आया? किसी का आंसर आया? चलो, first we will take the case of a string. So in case of a string, slacking is possible. Slacking is possible. Clear? It's possible to slack. So we have to keep this in mind. अच्छा, मैंने बताया था in last lecture. Suppose you have a bucket of water, having some water, and you want to rotate this bucket in the vertical circular motion. बताओ, at the highest point, what will be this one. So at the highest point, what you will try? You will try to make this bucket at rest, or you will give some velocity so that it will sustain the gravitational force. क्या करना पड़ेगा at the highest point? बोलो, क्या करते हैं? खुद बताओ, अपना नेचुरल आइडिया बताओ. ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में मत जाओ. बस अपना बताओ कैसे करोगे. सपोज वेलोसिटी देनी पड़ेगी. क्यों देना पड़ेगा? तो बैलेंस करने के लिए. बिल्कुल, है ना. देखो वहां पे भी बगैर पढ़े आपको आइडिया है that we have to provide some velocity ताकि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय l शुड बैलेंस दिस mg, है ना, है कि नहीं? यही तो करते थे. क्योंकि बकेट का वाटर नीचे गिरना इज जस्ट लाइक स्लैकिंग, जैसे बॉब का नीचे गिरना, ठीक है. तो इसको मैं आई विल टेक ऑन द नेक्स्ट पेज. इसको नेक्स्ट पेज पे लेंगे. चाहो तो इतना बना सकते हो. यहाँ पे मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ समझाने के लिए. इसको इतना चाहो तो बना सकते हो. चलो, कैसे करेंगे? देखो, फॉर द केस ऑफ स्ट्रिंग ओनली, इफ यू टेक any position at this point, so you can see that now this is mg, this is theta. So this mg cos theta now will try to slack the string, है ना. It will try to slack the string. The only thing that can retain the string tight is centrifugal force. Hi Anna, is it correct? So if you want to calculate the tension at this point, what will be the tension? क्या टेंशन आएगा at this point t? What will be the tension? तो बता सकता है? T will be equals to difference mv square by l minus mg cos theta. This will be the tension. At the highest point, you want to maintain at least some minimum velocity, minimum speed, so that this centrifugal force mv dash square by l downward mg is balanced. तो क्या हो जाएगा? mv dash square by l is equals to mg. Clear? Is it clear? So this is the first equation. This is force balance. This is force balance. So that no slacking is there. No slacking. And if this is the condition that mv dash square by l is balancing the mg, there will be no tension. There will be the tension if mv dash square by l is greater than mg. In that case, what will be the tension? The difference of this force and this force, that will be equal to tension. Okay, tension के बराबर आएगा. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो. एंड नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी बैलेंस.
यहाँ पे how much energy should be provided so that it reach the highest point, and at the highest point it will be having some kinetic energy. So mv dash square by 2 should be equals to 2 mgl potential energy plus mv dash square by 2. Okay, kinetic energy provided by u is equals to potential energy plus some kinetic energy at the highest point. Now we will use this one, the first equation, and we will put this value in the second one. Okay, so you will get mv dash square by 2 is equals to 2 mgl plus mv dash square by 2. So mv dash square by 2, so you can write mv dash square is equals to mgl by 2. If you put the value m dash square is equals to mgl, so it will become mgl by 2. Okay, so v naught square is coming root gl. So v naught is equals to root 5gl. This is the answer for case of this is for the case of string. This will be the value root 5gl. Okay, any doubt? We are just putting the value, we are substituting the value in the second equation. Put the value of mv dash square, that is equals to mgl, in this expression, and you will get v naught is equals to root 5gl. Clear है? Any doubt? बोलो. नहीं सर. चलो नोट कर लो. Rod, for case of rod, so rod में there is no slacking है ना, rod is rigid, so there is no problem of slacking, no slack. कुछ करना ही नहीं है. एट द हाईएस्ट पॉइंट इट शुड रीच, समहाउ इट विल रीच, है ना, बस किसी तरीके से पहुंच जाए, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है. शुड बी इक्वल्स टू 2 mgl, so v naught should be greater than or equals to 4 mgl, sorry 4gl, इतना आएगा. ठीक है, इसमें भी याद रखना. अच्छा, इसमें कोई पूछेगा कि सर आपने यू हैव टेकिंग द ग्रेटर और इक्वल्स टू साइन इसमें तो ले लिया है, पीछे क्यों नहीं लिया है? बताओ. इसमें लिया है v naught should be greater than or equals to, because if it is equals to 4 root 4gl, so it will reach the highest point and it will stop because finally the speed will be 0. देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 लिया है ना फाइनली, है ना. The entire kinetic energy is getting converted into potential energy, so that means the final kinetic energy is equals to 0. So v naught should be greater than or equals to root 4gl. अगर थोड़ा सा से ज्यादा हुआ तो रॉड आगे जाएगी, बट in this case this is not required, because at the highest point it just need to balance the mg force. Okay, balance होगी कि v naught is there, v dash is there, so v dash अगर है तो आगे तो जाएगा ही जाएगा. ठीक है, so इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसमें है. ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके यहाँ से. ठीक है, टॉपिक इज कंप्लीट. First question. You are having a hemisphere. Hemisphere के ball is there. M mass ball. What should be the V minimum या V naught? V naught का वैल्यू बताना है, so that ball loses the contact with the surface. Gravity is there. Radius is, चलो भाई आंसर बताओ फिर अगर आ गया तो.
क्या आंसर Is it 2GR? It's very simple. Just need to find mv naught square by r should be equals to mg और कुछ नहीं करना है, ठीक है. v naught is equals to root rg. Okay. At the highest point क्या होगा? This ball centrifugal force mv naught square by r equals to mg. ठीक है, वही किया. ठीक है, क्लियर. क्लियर है. Yes, sir. नेक्स्ट नोट हो गया सबका. हाँ सर. चलो नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है. इसमें क्या है? सेम फिगर बट कंडीशन इज डिफरेंट. यहाँ पे यू हैव रिलीज दिस ऑब्जेक्ट विद स्पीड जीरो. ठीक है, रिलीज किया यहाँ से. सो इसमें बताना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट थीटा इट विल लूज द कांटेक्ट. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड दिस थीटा. फाइंड एंगल theta at which the point at which the ball will lose the contact. देखो भाई, so when it lose this height क्या होगा? When it lose this height, it will lose the potential energy that will convert into kinetic energy. So this height is equals to, so this is r cos theta. So this one is r minus r cos theta. Clear? So mg r minus r cos theta potential energy will get converted into में kinetic energy. The first one. The second one, at this point mv square by r will balance mg cos theta. So mv square by r is equals to mg cos theta. ठीक है, so just put the value mv square by r. So when you put the value mv square by, यहाँ पे कितना हो जाएगा? mv square, so you can put mgr 1 minus cos theta by r is equals to mg cos theta. You can eliminate mg r. So you just need to solve 2 minus 2 cos theta is equals to cos theta. So cos theta is equals to 2 by 3. Is it matching? किसी का मैच हो रहा है? किसी का मैच हो रहा है? बोलो भाई, किसका आंसर आया था? किसका आंसर आया था? बोलो. सर मैंने फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखा. तो कैसे हो सकता है? तो गलत कैसे सर हुआ मैच. है ना, गलत हो जाएगा. चलो
So how did we get r cos theta? Beta, this is r, this is r. So when you take this r, this portion, it will be r cos theta, this will be r sin theta. कंपोनेंट लेना याद है? हाँ सर. हो गया? नोटेड? 1 minute. क्या हो गया? चलो, मतलब आपने कॉन्टेक्ट लूज प्रॉब्लम अब काफ़ी कुछ समझ चुके हो, अब आपको ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है। बस मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऑल्दो ये आपके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, बट स्टिल मुझे भरोसा है कि आप इसका आंसर सही दे दोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट्स अबव योर लेवल, लेकिन स्टिल अगर इसका आंसर दे देते हो इसका मतलब आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। चलो सॉल्व करो जरा इस क्वेश्चन को, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन में क्या है जो पीछे कराया था, इसमें कॉन्टैक्ट लूज करता है ना। सो बिफोर दिस पॉइंट mg cos theta was dominating and after this point mv square by r will dominate और कॉन्टैक्ट लूज करके दूर गिर जाएगा। इसका मतलब है इससे पहले mg cos theta ज्यादा था, उसके बाद mv square by r ज्यादा है। तो देवांशी का आंसर इज करेक्ट, इट्स करेक्ट, क्योंकि इनिशियली mg cos theta ज्यादा होगा एंड इट विल डिक्रीज, और इस पॉइंट पे धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इंक्रीज एंड एट दिस पॉइंट इट विल बी बैलेंस्ड, और आफ्टर दिस पॉइंट इट विल इंक्रीज, है ना ऐसा, और mg cos theta will decrease. So initially it was pushing the wire inward, and after that when the centrifugal force is dominating the mg cos theta it will pull the wire. Okay, answer is D. समझ में आया कि नहीं बताओ, आया कि नहीं? बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बॉडी पर लग रहा है ना, तो खींचता है ना इसको, खुद खुद सोचो ना, वो ऐसे खींचेगा ना उसको बाहर की तरफ, वायर को खींचेगा ना,
सर पर बीड पे लग रहा है ना, तो बीड वायर पे उल्टा तरफ क्यों लगाएगा? अरे आपका अगर बीड इफ बीड इज स्टिक, वो उस पे स्टिक है, वो उससे कांटेक्ट नहीं छूट सकता, ठीक है। सो पहले mg फोर्स वाज पुशिंग है ना, उसके बाद इट वाज पुल कर रहा था, समझे? क्लियर? हाँ सर। तो आंसर इज डी। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो कराते हैं, ठीक है। देखो भाई, 27 just moving in the north direction, then he took the direction west, है ना। this is j, this is minus I, so in speed कितना है? speed you can take v naught, so initial speed is v naught j, final speed is minus v naught I. So what is delta v? Acceleration क्या आएगा? average acceleration, it will be vf minus v initial upon में delta t. So vf is minus v naught I minus v naught j by delta t. So this direction, which direction? minus I minus j, कौन सी direction हुई? which direction? तो आपके हमें, ठीक है, क्लियर? माइनस आई माइनस जे साउथ वेस्ट है ना, समझा कि नहीं? सर बट एक्सेलरेशन मोशन में उसी तरफ होगा ना। बेटा एक्सेलरेशन जब इधर होगा तब जाके वो खींच के इसको यहाँ तक ला पाएगा, ठीक है। इधर होगा तो इधर आ जाएगी वेलोसिटी, समझ गए? तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा तब जाके वो क्या करेगा, इसका कुछ इस फोर्स का ये कंपोनेंट इसको कैंसिल करेगा और ये कंपोनेंट इधर देगा, तब जाके आपका इधर का मोमेंटम आएगा, समझा? क्लियर? क्यों? मैं पीछे बैकग्राउंड में जो डिस्टरबेंस है उसको थोड़ा सा कम कर लो तो शायद आप अच्छे से पूछ लोगे, है ना। लोगों को बोल दो चुप हो जाए। बताओ मेहा, सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वीएफ माइनस वी इनिशियल, यही होता है ना, अपॉन में डेल्टा टी। हाँ सर। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो बस सिंपल सा वैल्यू रख दो, यू विल गेट द वेक्टर, वेक्टर मिल जाएगा यहाँ से। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का दिस कंपोनेंट विल कैंसिल दिस मोमेंटम और ये वाला कंपोनेंट विल गिव दिस मोमेंटम। समझ में आया? सर तो फ्रिक्शनल फोर्स से उसको टर्न करा रहा है ना। हाँ तो फ्रिक्शन फोर्स ही तो कर रहा है ना ऐसा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, you just need to apply the, you just need to find acceleration vf minus v initial, you will get the direction of vector, vector का direction you will get
माइनस आई माइनस जे इज साउथ वेस्ट. क्लियर? क्लियर? Yes. नहीं हुआ तो बताओ, जल्दी बताओ. आपको लग रहा होगा कि फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए, कई लोगों को लग रहा है फ्रिक्शन तो इधर ही लगेगा, इस तरफ. अगर इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन तो ये कैंसिल कैसे करेगा? ये कैंसिल भी तो करना है. तो फ्रिक्शन एक्चुअल में ऐसा लगेगा, दिस कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एफ आर वाई विल कैंसिल दिस मोमेंटम एंड एफ आर एक्स विल गिव दिस मोमेंटम, तब जाके आपका ऐसा कंडीशन आएगा. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. एम्स का है ये क्वेश्चन, 2017 का है. 27 कंप्लीट. नाउ व्हाट अबाउट 28? 28 कैसे करेंगे? 28 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 28. So 28 का आंसर बी है 0.75. रिटार्डिंग एक्सेलरेशन. अच्छा पहले इसका तो आंसर लिख लो. दिस इज साउथ वेस्ट ना. रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इज गिवन कितना? 7.35 ड्यू टू फ्रिक्शन स्टॉप द कार. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द कार. तो कितना है? रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इज गिवन. सो किसी भी चीज पे force of friction will be mu mg. Mu mg will be the force of friction, है ना? Clear? हाँ सर. Force of friction will be mu mg because it's slipping ना. Friction force stop the car of mass 400 kg. The coefficient of friction between the tire. Okay, so acceleration will be equals to, just remove the m, it will be mu g, that is given 7.35. Now you can find out the value of mu. Mu is 7.35 divided by 10. So it's around 0.735. 0.735. When you put the value 9.8, you will get 0.75. 0.75 answer. Okay? When you put the value 9.8, you will get the answer 0.75. So it's nearly equals to 0.75. So answer is B. आप आंसर क्या बता रहे थे? आपका आंसर क्या था? सर मैंने बी बोला था 0.75. ठीक. आपने 9.8 लिया होगा. नहीं सर मैंने 10 लिया था. हाँ, तो मुझे भी यही आया. If you take 9.8, you will get 0.75. ठीक है? सर लेकिन मैंने ऐसे ही किया था लाइक x is equal to ma and which is equal to mu n, तो वो भी चलेगा. F equals to हाँ mu n, that is वही तो लिख रहा हूँ मैं, और क्या लिख रहा हूँ? नहीं लाइक ma is equal to mu n मैंने वैसे सॉल्व किया था. नहीं ठीक है. अगर आप 9.8 लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा. ठीक है? हाँ सर. ओके. चलो. तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं लगे आप लोगों को? बोलो. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और. इसको सही से निकालना है यार. इसको सही से सॉल्व करके निकालो. आंसर इज फर्स्ट. देखो इसमें क्या होगा. टेंशन इज टी. टेंशन इज टी. तो यहाँ पे दिस इज m2g इज एक्टिंग डाउनवर्ड. m2g नीचे लग रहा है और दिस f इज इक्वल्स टू m2g by 2. ठीक है? तो ये ज़्यादा है, इसको खींच लेगा इस तरफ. The acceleration will be in this side. ठीक है? Both will be having the same acceleration. इक्वेशन क्या बनेगा? m2g minus t is equals to m2a और f, this is f,
तो यहाँ पे क्या t minus f is equals to m1a. So when you add these equation, you will get m2g minus f is equals to a m1 plus m2. F का value is given, that is m2g by 2. So you will get m2g by 2 divided by m1 plus m2, that is equals to acceleration a. समझ में आया कि नहीं? क्लियर? हाँ सर। चलो नोट कर लो. सर मैंने अलग मेथड से किया जिसमें मेरे को ऊपर में माइनस एफ आ रहा था, तो मैं उसको राइट डायरेक्शन ले सकती हूँ ना? माइनस m2g डिनोमिनेटर था और न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर 2m1 प्लस 2m2 था, तो माइनस है तो मैं उसे राइट डायरेक्शन ले सकती हूँ ना, क्योंकि f लेफ्ट डायरेक्शन में है. नहीं माइनस क्या, आपने क्या लिखा इक्वेशन बताओ फिर से. इक्वेशन क्या लिखा? सर मेरा फाइनल आंसर था a इज इक्वल टू माइनस m2g अपॉन 2m1 प्लस 2m2. तो वो माइनस था तो मैंने उसे राइट डायरेक्शन कर दिया, तो वो गलत है क्या? आपने एक्सेलरेशन लेफ्ट में मारना था, लेफ्ट में. नहीं सर, राइट में ही लिया, बट मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था. तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ होगा कि बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी इन राइट डायरेक्शन. हाँ सर राइट ओनली ना. हाँ तो राइट डायरेक्शन. आपने क्या किया, मैं समझ ही नहीं पाया आपने क्या बताना चाहा. यू आर गेटिंग द माइनस साइन ना. या सर ऊपर. यू आर मेकिंग द सेम इक्वेशंस. हाँ सर. देन हाउ यू गेटिंग द माइनस साइन? So I'll check. I must have done something wrong. कुछ गलत हो गया होगा, देखें. ठीक है, तो बताओ. नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द क्वेश्चंस. अब आराम से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो. हाँ सर. तो एक और क्वेश्चन लास्ट में एक और कर लेते हैं. After that we can close the lecture, and in next lecture we will start COM और collision we will complete. उसके बाद I will take the doubts. मैं doubts लूँगा उसके बाद. ठीक है आपके? चलो इसको सॉल्व तो करो. सर कल डाउट लेक्चर है, तो उसमें हम डाउट्स नहीं हाँ लोगे? उसमें तो इन डाउट लेक्चर तो उसमें तो मैं डाउट्स ही लूँगा. मैं कोर थ्योरी लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है? ओके सर. डाउट लेक्चर में तो सिर्फ डाउट्स ही होंगे. अगर थ्योरी लेक्चर में सिलेबस इज कंप्लीट देन उसमें भी डाउट्स रहेंगे. ठीक है? सॉल्व करो इसको. ओके सर. आंसर बताओ. सर सी है क्या? Body start from rest and carry down the आंसर सी. अभी बता. हाँ सर. एक मिनट रुक जाओ, सबको सॉल्व कर दो फिर मैं बताता हूँ.
चलो सबने ट्राई कर लिया। सो क्या आएगा भाई, आपका क्या आ रहा है बेटा? सर सी आ रहा है। चलो देखते हैं। सो दिस इज g sin थीटा, आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ h, तो वी विल टेक ऐसे निकालेंगे L इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ g sin थीटा इंटू में t स्क्वायर। So t is equals to 2L by g sin theta का अंडर रूट। क्लियर? t is equals to 2L by g sin theta का अंडर रूट। Is it clear? सर अगर वो वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट वुड बी रूट टू जी एच और फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के निकाल ले तो क्या वेलोसिटी प्लस ए टी? सर बॉटम पॉइंट पे रूट टू जी एच होगा ना, हाँ तो फिर वैसे v भी कर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ कर सकते हैं। a क्या लिया? g sin थीटा ना? हाँ सर जी साइन थीटा। देखो इसमें क्या है, 2L by g sin theta, देयर इज नो ऑप्शन है ना, h के टर्म में आ रहा है, तो h क्या होगा? यू कैन राइट L is equals to h by sin theta। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू अगर यहाँ डालोगे तो यू विल गेट 2h by g sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो sin थीटा बाहर आ जाएगा, यू विल गेट 1 by sin थीटा रूट 2h by g। क्लियर? क्लियर है? सर और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना उसमें मैंने एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ लिया था, मतलब अज्यूम करा था, तो फिर सही है ना कि नेगेटिव साइन आ गया? इसलिए माइनस आ रहा होगा। हाँ तो फिर सही है ना? हाँ तो फिर माइनस सही करा था उसको, राइट साइड। ठीक है चलो, तो आज यहीं रखेंगे।